what is a chemical reaction and how to represent a chemical reaction using symbols and formulae. Chemical reaction is nothing but an interaction of two or more substances, maybe element and compound, or compound, or elements, under certain conditions of temperature, pressure, and other conditions, resulting into the formation of a new substance having entirely different properties than the substances which were taken for reaction. Then this is known as a chemical reaction. Now, this chemical reaction follows certain rules. We shall have to learn it later, and these rules are known as laws of chemical combinations. But writing a chemical reaction all the time in detail is again inconvenient. We have to simplify it. We have to make our studies convenient. And therefore, we use chemical equations. Chemical equations are nothing but the representation of the reacting substances and the substances which are formed, that is known as products, reactants and products, with the help of their symbols and formulae, with either as arrow sign in between or a sign of equal to. रासायनिक समीकरण वह तरीका है जिसमें हम विभिन्न क्रियाकारकों के सिंबल या फार्मूले को यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए हम उसे शॉर्ट में, संक्षिप्त में प्रदर्शित करते हैं। जो सब्सटेंसेस, जो पदार्थ क्रिया से करने के लिए लिए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जो पदार्थ क्रिया के बाद बनते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, पहले लेफ्ट हैंड साइड पर बाईं तरफ हम पहले रिएक्टेंट लिखेंगे और दाहिनी तरफ हम प्रोडक्ट्स लिखेंगे। अगर ये एक से ज़्यादा हैं तो दोनों के बीच में हम धनात्मक चिन्ह, पॉजिटिव साइन लगा देंगे और क्रियाकारक या रिएक्टेंट और बने हुए पदार्थ, प्रोडक्ट्स, दोनों के संकेत या सूत्र को लिखने के बाद हम दोनों के बीच में एक इक्वल टू का चिन्ह, बराबर का चिन्ह या दाहिनी ओर दर्शाते हुए एक एरो लगा देते हैं। That is how we represent a chemical reaction. Now, the chemical reaction which we write should follow certain conditions. केमिकल इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि वो कुछ स्थितियों को बताएं। इट शुड बी ट्रू रिएक्शन, ये वास्तविक क्रिया होनी चाहिए, नॉट हाइपोथेटिकल, काल्पनिक नहीं। दीज आर नोन एज essentialities of a chemical reaction. Essentialities. First, it should represent a true reaction. It should be molecular. इसमें जो भी हम पदार्थ लिखते हैं, एलिमेंट या कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल H can be written if it is in form of element. Otherwise, we write H2Cl2. So, it should be molecular and then it should be balanced. Balanced means the total number of reactant under total number of atoms of the reactant, a particular reactant, maybe element, should be equal to the total number
of that particular element on the right hand side of the reaction, that is on the reactant side and the product side. So the essentialities must be confirmed. अपने आप बना करके हम कुछ भी रिएक्शन रख दें और वो कोई करने के लिए जाए, कोई उसको वेरीफाई करने के लिए जाए और वो प्रोडक्ट न बने तो वो तो गलत होगा. Therefore we write the true reaction. Then how to balance the reaction? There are various ways of balancing the reaction. कई तरीके से हैं जो कि हम बैलेंस करते हैं. बैलेंस का मतलब होता है संतुलित समीकरण लिखना. संतुलित समीकरण लिखना इसलिए अनिवार्य है कि हमने पढ़ा भी है और आगे भी पढ़ेंगे कि रासायनिक क्रिया में न कोई चीज नष्ट होती है न बनाई जा सकती. For example, a simple reaction like iron and oxygen forms Fe2O3 under certain condition. किसी भी रिएक्शन में आयरन और ऑक्सीजन Fe2O3 बनाता है कि गर्म करने पर या कुछ ऐसी कंडीशन होगी तो रिएक्टेंट क्या हुआ? आयरन और ऑक्सीजन. प्रोडक्ट क्या हुआ? आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3 है और आयरन मेटल है, एलिमेंट है, इसका सूत्र है Me. और ऑक्सीजन ऑफ कोर्स इज ए डायटोमिक गैस. वी वोंट राइट O, वी राइट O2. और सही फार्मूला, करेक्ट फार्मूला Fe2O3 है आयरन ऑक्साइड का, वो हमको लिखना पड़ेगा. लेकिन अब ये बैलेंस्ड नहीं है. हम अगर दाहिनी तरफ देखें, आयरन के कितने परमाणु हैं, एटम हैं? 1. ऑक्सीजन के 2. और प्रोडक्ट में क्या है? 2 आयरन है और 3 ऑक्सीजन. इसलिए ये Fe2O3 है. तो नेचुरली हमें क्या करना चाहिए? हमें इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये एटम की संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाए. और अगर हम आयरन को 4 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई आयरन बाई 4 एंड ऑक्सीजन बाई 3, वी गेट Fe2O3 2 times. Our equation now becomes 4Fe plus 3O2 is equal to 2Fe2O3. Proper multiple for a particular reactant or the product has to be manipulated. This is known as hit and trial method. ये करो और देखो वाला मेथड है, hit and trial. क्या करें कि वो दोनों एटम बराबर हो जाएं. एक की संख्या अगर आपने बाईं तरफ बढ़ाया है तो दाहिनी तरफ कैसे बढ़े? Similarly, iron and steam, water, reacts to form Fe3O4 and hydrogen. So what are the reactants? They are iron and water. Conditions of reaction हम इक्वेशन में प्रायः नहीं बता पा रहे हैं अभी, लेकिन बाद में हमने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है और हम कंडीशंस भी बताते हैं. कैसे किया है, क्या किया है, सारे डिटेल्स हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे. और प्रोडक्ट्स हियर इज Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस H2. अब यहाँ अगर हम देखें तो हम सीधे सीधे पहले स्केलेटन इक्वेशन लिखेंगे. स्केलेटन ढांचा कि आयरन रिएक्टेंट है, वाटर रिएक्टेंट है, Fe3O4 है और H2 है. ये ढांचा हुआ. अब इसमें हमको सबसे पहले हीट एंड ट्रायल के मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि कितने आयरन प्रोडक्ट में हैं, आयरन के एटम, परमाणु.
3 हैं। नेचुरली हम पहले इसको बैलेंस करेंगे, इसमें जो एलिमेंट है उसको बैलेंस। आयरन है, 3 एटम है, तो हम यहाँ इसका फार्मूला नहीं चेंज कर सकते, ये तो है Fe3O4। हम क्या करेंगे, आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट बिकम्स 3Fe। लेकिन ऐसा मल्टीप्लाई या गुणा करने के बाद वाटर डिस्टर्ब हो जाता है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी हमें बैलेंस करना है। यहां ऑक्सीजन 4 है और हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो 4 ऑक्सीजन के लिए हमें कहां से मिलेगा, H2O से, जो कि क्रियाकारक है, रिएक्टेंट है। तो हम 4 से वाटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, H2O को। केवल ऑक्सीजन को नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि H2O4 कर दें, नो, वाटर के फार्मूले को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, इट इज H2O। हम क्या करेंगे, पूरे वाटर के फार्मूले से को 4 से गुणा कर देंगे, इट बिकम्स 4H2O। अब आप देखिए, अगर हम 3 से यहां मल्टीप्लाई करें, 4 से यहां मल्टीप्लाई करें, तो इट बिकम्स Fe3O4, लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाता है, हमें हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो द इक्वेशन इज thrice Fe plus 4H2O, Fe3O4 plus 4H2 comes like that. Similarly, I have given you some other examples, and there could be many more examples this way. For example, MnO2 plus 4HCl becomes MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. MnCl2 is manganese chloride, Cl2 is chlorine gas, and water is of course H2O. अब इसमें हमको यही देखना पड़ता है कि मैंगनीज का एक एटम होना चाहिए दोनों तरफ, ऑक्सीजन के 2 एटम्स होना चाहिए। 2H2 अगर हमने लिखा तो ये माना जाता है कि ये ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। H2O में तो 1 है, लेकिन दुगना H2O बना है तो 2 एटम हैं। हाइड्रोजन के 4 हैं, ट्वाइस H2O। और क्लोरीन एक MnCl2 के साथ है Cl2, और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बना। It cannot be 2Cl, it is Cl2. So that way calcium carbonate plus 2HCl is equal to CaCl2 plus, I have given you a dash here, blank space, you have to search it out, plus water, H2O. So this is how we write a balanced equation by heat and trial method. I give you another example. Suppose there is a compound or a substance which is known as KClO3. हम इसको पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। K is positive, ClO3 is negative. The formula is KClO3. अब KClO3 के किसी कंडीशन में हम जब गर्म करते हैं, we get KCl and oxygen. So what we write, if we are required to write a balanced equation, we shall write skeleton equation first. KClE3 giving KCl plus O. ये एरो हमने लगाया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में। जब हम बैलेंस कर लेंगे तो वहां पर इक्वल टू का साइन लगेगा। अभी ये बैलेंस नहीं है, तो अब हम इसको एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं। यहां पर देखते हैं KClO3, KCl तो है, ऑक्सीजन में फर्क है। ऑक्सीजन को हम 3O कर दें, O3 नहीं करेंगे, क्योंकि O3 अगर हम कर देते हैं तो कोई दूसरी चीज बन जाती है जिसका नाम है ओजोन। इट्स नॉट ऑक्सीजन,
तो it should represent a true reaction. So we write it in the atomic form. और फिर हमें इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2KClO3 इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू का साइन है, gives you 2KCl plus 3O2. That is there. ये बैलेंस हो गया, 6 ऑक्सीजन। लास्टली ये हीट एंड ट्रायल मेथड है जो मामूली बहुत से रिएक्शंस को ये पूरा कर देता है। इस तरह से हम कर लेते हैं, लेकिन हमेशा कर पावे ऐसा संभव नहीं है। There are many complicated or complex reactions we shall come across, which depends upon the nature of the reacting substances. It may be oxidizing agent, it may be a reducing agent, और ऐसे केसेस में हमको अगर हम सरल तरीके से निकालना चाहें, उसको बैलेंस करना चाहें, उसको संतुलित करना चाहें, probably it becomes very complicated. And therefore, what we do, we break it up into 2 or more simple equations. Balance these simple equations. And if you find that anything extra comes over as a product, we multiply with the suitable multiple so that they cancel out at the reactants and the product. अब ये हम आपको एक उदाहरण के द्वारा बताएंगे, और इस तरह के कई अभ्यास या प्रैक्टिस आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल, जिंक Zn, दिस इज नोन एज पार्शियल इक्वेशन मेथड। इसको हम बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। Suppose zinc reacts with nitric acid, you get zinc nitrate and water and N2O. N2O is nitrous oxide. Water, of course, is known to us, H2O, and zinc nitrate is ZnNO3 2 times. ये प्रोडक्ट बनता है। इसको हम चेंज तो कर ही नहीं सकते, ना उसके फार्मूले को चेंज कर सकते हैं। So what we do, we break this reaction in order to write a balanced equation. You break it into 2 different parts. Why? Because we know that nitric acid is an oxidizing agent. It can get reduced to give compounds like water and N2O. तो हमने पहले क्या किया, एक स्टेप में जिंक और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन लिख के हमने जिंक नाइट्रेट बना दिया और देखा कि 2H है, 2H नेसेंट हाइड्रोजन इसको हम बोलते हैं, ये बना। अब ये हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उससे रिएक्ट करेगा और उसको रिड्यूस कर देगा, उसको घटा देगा। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमें एक मामूली आइडिया क्लास 10th में दिया गया है, और अभी आगे किसी चैप्टर में हम इसको और ज़्यादा पढ़ेंगे, और हम बड़ी आसानी से ये निकाल लेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और उसके कैरेक्टर को, उसकी विशेषताओं को, क्रियाकारक के विशेषताओं को समझते हुए हमें ये पार्शियल इक्वेशन मेथड करना पड़ता है। अब अगर हम इसको करें तो हमने पहले देखा, यू गेट जिंक नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन एंड देन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म N2O एंड वाटर। ये दोनों को हमने अलग अलग बैलेंस किया। अब जब अलग अलग बैलेंस कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट में, जो कि मेन प्रोडक्ट है, उसमें 2H या H करके कोई चीज नहीं, जिसको कि हम बीच में बोलते हैं कि एक इंटरमीडिएट है, बीच में बना है लेकिन वो यूज अप भी हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको सुटेबल मल्टीपल से दोनों इक्वेशन को गुणा करेंगे। अगर जरूरी है तो एक को करेंगे, दोनों तरफ माइंड इट।
If any equation is multiplied by a particular multiple on both the sides, it doesn't alter. किसी भी समीकरण को अगर दाहिनी ओर और बाईं ओर किसी भी खास कांस्टेंट से गुणा कर दिया जाए, उसी कांस्टेंट से तो फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ 8 हाइड्रोजन यूज हो रहा है, और दूसरे को भी 4 से दाहिनी तरफ मल्टीप्लाई किया। पहली इक्वेशन को बाईं और दाहिनी तरफ दोनों तरफ। सो इट बिकम्स 8h। अब ये 8h बाईं तरफ और दाहिनी तरफ इक्वेशन के आ गया, नेचुरली वो कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। और फिर दोनों को हमने बाईं ओर के क्रियाकारकों को जोड़ दिया, संतुलित क्रियाकारकों को, और दाहिनी ओर के क्रियाकारकों को जोड़ दिया, और बीच में इक्वल टू का साइन लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। दैट इज इट। देयर कैन बी many other equations, for example potassium permanganate and sulfuric acid, ऑक्सीजन देता है ये 5O, और इसको भी हमने इस प्रकार से बैलेंस किया। तो इस तरह का अभ्यास शुरू में किसी और चैप्टर को करने के पहले आप पूरा करें। थैंक यू। और उम्मीद ये करते हैं कि इससे आपको काफ़ी सरल हो जाएगा आगे का अध्ययन, और इसे आप करें। इन केस अगर कोई असुविधा है, कोई दिक्कत है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।